welcome to Shripati Education online classes, and now I'm going to start the C tutorial. Here we are going to cover the basic C programming language. So in this tutorial or in this slide we are going to learn first of all what is the language, what are the types of languages, and in the types of languages we are going to see programming languages and the language processors. After that we are going to see what are the programming techniques, what are the techniques for the programming, and inside the programming techniques we are going to see algorithms and the flowcharts. After that first of all we are going to start from the language. If I'm talking about the language, so what type of thinking comes in your mind? Like general language, we speak to another person like this, like that type of languages, right? So to communicate with the computer, we need to use the languages, that is computer language. And to communicate with the person, we need to use general languages. Some type of words we are going to use. Some types of word we use to communicate our opinion to others, right? So exactly like that, in computer system, when we interact with the computer, we need a language. We need a language, that is programming we need to interact with the computer. Or in the simple words, I can say that the person needs any type of languages like Hindi, English to convey their messages and to share the feelings, ideas from one person to another. As I told you about this, the person sharing their ideas, feelings from one person to another with the help of the Hindi English languages. Just like that, in computer, programming is that technique which is used to interact with the computer. Similarly, to communicate with the computer, that are the programming languages. But the question is that, what is a programming language? What exactly it is? So the programming language is used to pass the commands and gives the instructions to the computer. That means programming language का मतलब वो होता है जब हम कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में कुछ कमांड्स को पास करते हैं. हम एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं और हम कमांड्स पास करते हैं जिससे कि कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके 0-1 के फॉर्म में वो इंस्ट्रक्शन को समझता है कि क्या इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि फॉर्ट्रैन है, बेसिक्स है, कोबोल है, तो ये सारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं तो सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. where a predefined sets of instructions are there, जहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को in English language, but the computer understand their own machine level language. तो वो क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है, तब जाके कंप्यूटर समझता है. लेकिन हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या हम एक प्रोग्रामर हैं तो हम क्या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर उन लैंग्वेज, उन वर्ड्स को कुछ सिंबल्स डिफाइन किए हुए हैं 0-1 के फॉर्म में, तो वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, एक मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है. सी एक साइंटिफिक एप्लीकेशन में फॉर्ट्रैन आ जाता है जो एक साइंटिफिक एप्लीकेशन है. बहुत सारे लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होते हैं. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आ गई. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने समझ लिया कि एक ऐसी लैंग्वेज हमें चाहिए कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें, कुछ कमांड पास कर सकें. तो हम अब कमांड पास कर सकें तो उसके भी कुछ लेवल्स होते हैं कि किस तरीके से, जैसे कि हाई लेवल प्रोग्राम्स आ गए, लो लेवल प्रोग्राम आ गए,
एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड है, एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड आपका 0-1 के फॉर्म में होता है, जैसे कि मैंने बताया। लो लेवल प्रोग्रामिंग जो होती थी उसमें कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स थे कि हम सिर्फ वही लैंग्वेज यूज कर सकते थे, वो हर कोई यूज नहीं कर पाता था। जो बहुत ही ज्यादा एकदम कहते हैं ना कि अच्छा प्रोग्रामर होगा, बहुत प्रोग्रामर भी नहीं, जो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता होगा वही लो लेवल प्रोग्राम्स बना सकता था। लोड, R1D, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस यूज करते थे वो लोग। आफ्टर दैट हाई लेवल प्रोग्राम। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लो लेवल प्रोग्राम्स, लो लेवल लैंग्वेज की। अब यहाँ पे जो हमने देखा, हाई लेवल प्रोग्राम में आपकी क्लासेस आ गई, यानी कि आपकी C++, आपका जावा आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। लो लेवल में असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, लोड करो, R1B, फिर वो 010101 के फॉर्म में चेंज करता जाएगा, दैट इज एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, व्हाट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू बिल्ड द हार्डवेयर, एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना विच वी यूज टू बिल्ड द हार्डवेयर, जिससे हम हार्डवेयर को बनाते हैं। To work with a low-level language, it is very difficult because it requires very extensive and vast knowledge of hardware and configuration. As I told you कि ये जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हर किसी की बात नहीं होती है, और पहले सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज ही चलती थी। तो एक जो कहते हैं ना, जो नेव यूजर होता है, जो एंड यूजर होता है, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसको बहुत ही ज्यादा वेरी एक्सटेंसिव एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द वास्ट नॉलेज होगी, वही वो मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को डिजाइन कर पाता था। मशीन लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 का प्रोग्राम ही समझता है, सो इट डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम, तो उसको कोई भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग कौन है, हम लोग डेवलपर्स हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होगी हमको। तो अब 0-1 में करते रहेंगे तो वो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब अगर हम सिंपल इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स का यूज करेंगे तो जो हमारा एंड यूजर होगा वो भी बहुत इजीली समझ सकता है कि हमने क्या प्रोग्रामिंग की हुई है। अब हाँ, वो थोड़ा बहुत समझ सकता है कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज की, तो वो कुछ समझ में नहीं आएगी कि ये 0-1 है, 0-1 है, 1-0-0-1। तो वो कोड कौन समझता है? कंप्यूटर के लिए होता है 0-1-0-1। भैया ट्रांसलेटर ने क्या करा, ट्रांसलेट कर दिया 0-1-0-1 में। आपने जो भी लिखा, आपने लिखा इंट ए 10 दे दिया, बी 20 दे दिया, एडिशन कर दिया, प्रिंट करा दिया प्रिंट ऐप यूज करके। तो क्या हुआ, हमने तो अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल लैंग्वेज हमको दी गई है सी में, हमने उसमें लिख दिया, लेकिन अब हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। भैया ट्रांसलेट कर दो 0-1 के फॉर्म में, ताकि क्या हो, कंप्यूटर समझ जाए, क्योंकि कंप्यूटर ये तो समझने वाला है नहीं खाली, तो एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है। लेकिन मशीन लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी 0-1-0-1 के फॉर्म में लिखी जाती है। So as I told you about this कि machine code and it is written as a string of 0 and 1. When the sequence of code is fed to the computer, it recognizes the codes and converts it into electrical signal needed to run it. When a sequence of code is fed to the computer, जब सीक्वेंस ऑफ कोड को हम कंप्यूटर में फेड कर देते हैं, इट रिकॉग्नाइजेस द कोड्स, तो वो क्या करता है, कोड को रिकॉग्नाइज कर लेता है और कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो नीडेड टू रन इट। अब फॉर एग्जांपल 1011 000 111 101, that is what this is the binary language which is to be understood by the computer. After that we come on to the second language, that is assembly language. तो हमने लो लेवल लैंग्वेज में तो समझ लिया कि लो लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने बताया था, 1s और 0s में बात होती है, फिर कंप्यूटर को दे दिया जाता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उसको रन कर देता है, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वास्ट नॉलेज चाहिए होती है। तो उसको प्रोग्रामिंग को वहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग थी
उस बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये, तो उसको हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए। लेकिन बिफोर फ्रॉम दैट हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आता है कि भैया पहले प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दें। You should know that letter computer can handle numbers and letters. Therefore, some combination of letter can be used to substitute for numbers. Like जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि load R, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होने लगे लो लेवल से लो हाई लेवल लैंग्वेज पे हम डायरेक्टली स्विच नहीं किए, बीच में क्या आ गया, एक असेंबली लैंग्वेज आ गई। उन्होंने बोला कि भैया अगर मशीन और हार्डवेयर आपको मशीन लेवल लैंग्वेज थोड़ा टफ लग रहा है तो हम एक काम करते हैं कि हम कुछ सब्स्टिट्यूट्स ला दे रहे हैं, जैसे कि आप लोड करें आर, तो ये क्या हो गई, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गई कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो यू शुड नो दैट लेटर कंप्यूटर्स कैन हैंडल नंबर्स एंड लेटर्स। Therefore, some combination of letters can be used to substitute for numbers of machine codes. So machine codes directly तो हमें समझ में नहीं आ रहे, तो हमने कुछ letters बता दिए उन्हें कि अब आप ये use कर सकते हैं। तो the set of symbols and letter forms the assembly language and the translator program is required to translate the assembly language to machine language. तो क्या हुआ कि अब असेंबली लैंग्वेज तो बता दिया कि कुछ वर्ड सब्स्टिट्यूट्स दे दिए कि भैया लोड आर करें, ये करें, ये करें, तो ऐसा हो जाएगा। कुछ लोड है, फिर और भी वर्ड्स होते हैं, मल्टीप्लाई के लिए MUL, डिवीजन के लिए DIV, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो वो जो सेट ऑफ सिंबल्स थे एंड लेटर्स जो मिलके एक असेंबली लैंग्वेज बनाते हैं, तो एक ट्रांसलेटर होता है वहां पे भी, वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब लोड आर 01, अब ये तो कंप्यूटर अभी भी नहीं समझ पाएगा, तो लोड आर और 01, लोड 1, 01, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनके लिए भी एक मशीन 01 में समझ सके तो वो क्या करता है, असेंबलर काम करता है। असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है 01 के फॉर्म में। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। तो जो ट्रांसलेटर होता है, उस प्रोग्राम जो ट्रांसलेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया हमने तो असेंबली लैंग्वेज में लिख दिया है, अब असेंबली लैंग्वेज से हमें मशीन लेवल लैंग्वेज तक पहुंचने के लिए एक बीच में मीडिएटर चाहिए होता है, दैट इज द असेंबलर, और उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर प्रोग्राम बोलते हैं कि भाई लोड आर, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये तो हमने लिख दिया है, अब आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ द असेंबलर से आप एक काम कीजिए कि मशीन को समझा दीजिए कि 01 में जो कोड हम भेज रहे हैं असेंबलर उसको ट्रांसलेट कर देगा 01 में। तो ये एक सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आई थी। अब हम बात करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज की। अभी हमने लो लेवल बात करी, लो लेवल लैंग्वेज में ही हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, उसी में हमारा असेंबलर होता है। अब लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर इज नोन एज अ मशीन लैंग्वेज। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, दैट इज 010101, तो बहुत डिफिकल्ट था मशीनी लेवल लैंग्वेज। इट डजंट नीड एनी टाइप ऑफ ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं होती, जैसे कि असेंबलर में जरूरत हुई है और हाई लेवल प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में जरूरत होगी, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। अब यहाँ पे मशीन कोड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो मशीन कोड क्या होता है कि जो कि 01 की फॉर्म में लिखा हो, दैट इज मशीन कोड। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज लुक लाइक दिस, लाइक 1011 000 111 101। तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं वो भी कैसे लिखे होते हैं, 10100101। तो मशीन केवल वही लैंग्वेज समझता है जो बाइनरी डिजिट्स में होती है। दिस लैंग्वेज इज रन इनटू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन था तब उस टाइम पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी। सेकेंड जनरेशन में हमारा असेंबली लैंग्वेज आ गया। सो द एडवांटेज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज इज नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। तो उस टाइम पे सिर्फ ये एडवांटेजेस था कि भाई आपको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, you don't need any type of translation if you are using a machine level language, but it was used at the first generation times. Now if I'm talking about high level language, so what is high level language? हमने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ लिया, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा लैंग्वेज। तो कंप्यूटर से इंटरेक्शन के लिए वी नीड अ लैंग्वेज, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पहले सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज चली, लो लेवल लैंग्वेज में आपका मशीनी लेवल लैंग्वेज आई। अब मशीनी लेवल लैंग्वेज में भाई 010101 कंप्यूटर को देते जाओ, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, वास्ट नॉलेज होनी चाहिए कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो करेक्ट है। आफ्टर दैट
आफ्टर दैट जब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, उसमें क्या है, हमारे पास असेंबलर आ गया जो कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज थी। तो असेंबलर ने एक ट्रांसलेटर की जरूरत होने लगी, वहां पे कुछ सब्सटीट्यूट दे दिए वर्ड्स के। अब वो सब्सटीट्यूट्स क्या हो गया कि लोड करें, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लाई के लिए MUL, डिवीजन के लिए DIV, फिर कुछ वेरिएबल्स लेने लगे, R1 R2 ले लिया, फिर इसको लोड कर दिया मेमोरी में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे RES से, फिर उसकी इंडेक्सिंग होती है, फिर उसमें ऑपरेंड्स आते हैं, ऑपकोड आते हैं, तो वो भी एक पूरी असेंबली लेवल लैंग्वेज है। बट वहां पे ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, दैट इज असेंबलर, क्योंकि जो लोड और जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को मशीनी लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए वी नीड अ 01। अब बात करते हैं हम, फिर उसके बाद मशीन कोड किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मशीनी कोड क्या होता है। तो बाइनरी डिजिट्स को जब हम बाइनरी डिजिट्स को कंप्यूटर समझता है उसको मशीन कोड बोलते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? अब तो भाई हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? From the name of high level language, it sounds that the language is definitely, it requires more knowledge of programming as compared to low level programming language. Because in the low level programming language, we are talking about the machine codes and assembly language. Please correct the spelling here, that is ASSEMBLY. It is a printing mistake here. After that, that is machine dependent and only the programmers who have code knowledge can understand it. अब यहाँ पे हमने क्या बात करी कि हाई लेवल लैंग्वेज से टफ तो हो गई, वो तो मशीन कोड तो बहुत टफ था। अब हाई लेवल लैंग्वेज टफ तो है क्योंकि हर कोई उसको समझ नहीं सकता, जो प्रोग्रामर डेवलपर्स होते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं, एंड यूजर सिर्फ पढ़ सकते हैं कि भाई इजीली कि भाई इसमें इंक्लूड करा है, इसमें stdio.h लगा दिया है, फिर उसके बाद bean फंक्शन है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो वो क्या हुआ, वो सिर्फ पढ़ सकेंगे वो लोग कि भाई एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे वर्क करता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स में है, कुछ डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, तो उन सब का यूज करते हैं। कुछ डिफाइंड वर्ड्स हैं कि कुछ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है इसमें। तो क्या होता है, इसके लिए एक वास्ट नॉलेज होनी जरूरी है हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए। But in the high level language, only using the simple English alphabetical and mathematical symbol like plus, minus, high level language तो है, जैसे कि मैंने आपसे बोला अभी अभी मैंने बताया कि high level language है, but what we are using here, we are using only the some types of simple symbols, that is mathematical symbols for manipulation, operator manipulation के लिए भी यूज करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी होते हैं, यूज करते हैं सिंपल प्रोग्राम्स में। तो क्या हुआ कि we are known about this। ऐसा नहीं है कि हमने मशीन लेवल लैंग्वेज उठा के रख लिया और 010101 करते जा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि भाई 0101 में क्या है। तो वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा टफ था। और कई बार तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो भी बहुत टफ होती है, लोड आर फिर लोड MUV फिर वो, तो वो भी बहुत टफ होती है। तो क्या है इजी, क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपका कितना सब सी आ गया, आपकी C++ आ गया, जावा आ गया, PHP आ गया, पाइथन आ गया। सो दीज आर ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि अगर कोई नेव यूजर भी है और हम बोले कि भैया आप PHP सीख लीजिए, तो वो क्या करेगा, PHP सीख लेगा। वो क्या करेगा, पाइथन सीख लेगा, वो जावा सीख लेगा, वो सब कुछ सीख सकता है क्योंकि वहां पे एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, दैट इज सी सीख लेगा, वो C++ सीख लेगा, क्योंकि वहां पे सब कुछ क्या है, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स में है। और अगर मैंने कहा कि भैया तुम मशीन कोड लिख दो, तो क्या कोई लिख पाएगा? मैंने कहा असेंबली लैंग्वेज लिख दो, क्या लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। बट इन द हाई लेवल लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू अबाउट द सम मैथमेटिकल सिंबल्स वी आर यूजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज converted it into the machine level language for the computer to understand। वही मैंने बात करी कि हम यहाँ पे ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं, यहाँ पे हम कंपाइलर यूज करेंगे, इंटरप्रेटर यूज करेंगे कि भाई मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइल कर दीजिए, कंपाइल करके ट्रांसलेटर जो हम यूज करते हैं वो यूज कर दीजिए, जैसे कि हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में करते हैं कि 0101 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे भी कंपाइल कर देगा कोड। अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर सुटेबल फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब जैसा कि बताया कि इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एल्गोरिथम्स चलती हैं, फिर
एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर कुछ लिख दिया फिर नीचे कुछ लिख दिया फिर उसके बाद कर चला दिया प्रोग्राम कि प्रोग्राम चल गया, तो ऐसा नहीं होता। हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हमें एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, एक टेक्निक्स कि भाई टॉप डाउन है, बॉटम अप है, अप्रोचेस होते हैं कि लॉजिकल सिंटैक्टिक एरर कब आने वाला है, सिंटेक्स एरर कब आएगा, क्या है, अगर सिंटेक्स एरर दे दिया तो कहाँ गलती हो रही है, किस सिंटेक्स में गलती, क्या हमने वो सिंटेक्स लगाया है जो सिंटेक्स प्रीडिफाइन है, जो पहले से डिफाइन किया जा चुका है, हम वो सिंटेक्स यूज कर रहे हैं। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ने वाली चीजें होती हैं। अब कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज में आपका कोबोल हो जाता है जो कि एक बिजनेस लैंग्वेज है। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज प्राइमरीली यूज होता था कंपनीज में और गवर्नमेंट बिजनेस फाइनेंस में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यूज होता है। फिर फॉर्ट्रेन पे आ जाते हैं, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब बिफोर मूविंग अहेड वी आर going to see some basics, some technical terms we are using here, like the language processors in our upcoming videos. So if I'm saying that what is language processors, so what exactly is a language processors? High level language is written in a simple alphabetical language, कि simple alphabetical language में नहीं होता है by the programmer but can't understand by the computer directly, because it understands the machine code that is 0 or in the form of the 1. So that's why for the computer we need a language processor. अब हम इसको यहाँ क्या बता रहे हैं, हम इसे बता रहे हैं कि हम लैंग्वेज प्रोसेसर यूज करते हैं, और लैंग्वेज प्रोसेसर्स अगर हम यूज करते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज, कि भैया कंप्यूटर आप हाई लेवल लैंग्वेज समझ लें। और हाई लेवल लैंग्वेज कैसे समझता है वो लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू, जब वो 0-1 में उसको कन्वर्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर और सिस्टम प्रोग्राम दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज तो 0-1-0-1-0-1-0-1 होती है। हाई लेवल लैंग्वेज इन सिंपल इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स में दिया होता है। अब उन इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स को कंप्यूटर को समझाना है, वो तो हमने लिख दिया हाई लेवल लैंग्वेज में, सी में लिखा, सी प्लस प्लस में लिखा, जावा में लिखा, पीएचपी में लिखा, पाइथन पे लिखा, कोड हमने लिख दिया। अब भैया कंप्यूटर कैसे समझेगा? कोई लैंग्वेज प्रोसेसर तो चाहिए होंगे ना, हमें कोई ट्रांसलेटर तो चाहिए होगा कि भाई 0-1 में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स यूज करेंगे। अब लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? हमारा इंटरप्रेटर, कंपाइलर, जैसे कि उसमें क्या था, असेंबलर था, यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। अब एज आई टोल्ड यू कि असेंबलर है, यहाँ पे एक असेंबलर भी एक क्या है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। अब जब हम असेंबलर की बात कर रहे हैं तो असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या थी, जैसे मैंने बताया था कि लोड के लिए LDR सम प्रीडिफाइंड वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कोड दिया हुआ है एक असेंबली लेवल लैंग्वेज का, जिसमें मूव के लिए MOV यूज किया है, R3 यूज कर लिया, STR यूज कर लिया, MOV R325, ये क्या है, ये उसकी इंडेक्सिंग, उसकी इंडेक्स पोजीशन बता रहा है। फिर लोड कर दिया R2, LDR R3, फिर ऐड कर दो R3 R2 R3 को, जो उसकी इंडेक्स 8 पे है, 12 पे, 8 पे, फिर ऐड कर दिया तीनों को, फिर STR R3 में इसको क्या इसमें स्टोर कर दिया, फिर लोड करा दिया मेमोरी में। फिर यहाँ पे क्या आया, एक लैंग्वेज प्रोसेसर आ गया, दैट इज ट्रांसलेटर। अब ये लैंग्वेज कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आ रही है, कि समझ में आ रही है कंप्यूटर को? अगर हम इसको दे दें तो हम क्या करेगा, एरर दे देगा। बिना इसके तो एरर दे देगा, क्योंकि डायरेक्टली तो समझ ही नहीं सकता ना, डायरेक्टली तो समझ ही नहीं सकता कंप्यूटर कि क्या लिखा है मैंने, हमने इसको क्या लिख के दे दिया, जब तक कि हमारे पास असेंबलर नहीं होगा। तो क्या जरूरत है हमें, असेंबलर की। अब ये तो वही बात हो गई कि हम इंडिया में हैं और हम इंडिया में इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं एक चाइनीज से, पर चाइनीज कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। अब अगर चाइनीज कुछ समझ ही नहीं पा रहा है तो हम इंडियन में बात कर रहे हैं इंडियन लैंग्वेज में, और चाइनीज चाइनीज में बात कर रहा है, और हमारे आपस में इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर भैया एक मीडिएटर की जरूरत तो पड़ेगी ना, कि हम क्या बोल रहे हैं वो चाइनीज को बता दो, और चाइनीज क्या बोल रहा है वो इंडियन को बता दो। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है कि हमने असेंबली लेवल लैंग्वेज तो बता दी भाई, कि भैया ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है, ये क्या है, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है। अब ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है
तो यहाँ पर क्या है ये? What is this? This is 10010101। तो ये 010101 है। अब अगर असेंबलर नहीं होगा, एक लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं होगा कि लैंग्वेज को वो प्रोसेस करे और 0101 में इसको दे दे कंप्यूटर को, ताकि वो मशीन लेवल लैंग्वेज हो जाए। तो assembler is the language processor or the translator, as I told you. We also call it translator. So, which is used to convert the assembly code into the machine code. After that, मैंने compiler की बात की. Compiler is also another translator or another language processor. इसमें हमने बात की कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा. In which language this program is? This is in the C. And the line after returning, what we called it as? We called it as a source code. What exactly it is? It is a source code. This is a source code. When we have writing any program on any editor, that is called as the source code. अब ये तो क्या है? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है कि इंक्लूड है, stdio डॉट h है, मेन फंक्शन है, printf करा दिया, हेलो वर्ड है, गेट ch लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया. लेकिन अब ये भी तो, अब माना कि मैं एक सिंपल यूजर हूँ, तो मैंने ये पढ़ दिया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया. अब माना कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको पढ़ा और मुझे समझ में आ गया कि भैया मेन से एंट्री हुई, प्रिंटफ क्या हुआ, प्रिंटफ फंक्शन है जो कि क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, गेट ch हो गया और हमने कर्ली ब्रैकेट्स जो ब्रैकेट्स है उसको क्लोज कर दिया. और ये लाइब्रेरी फाइल हमने यहाँ पे क्या करवा दी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने यहाँ पे क्या करा दी, इंक्लूड करा दी. अब जब हमने इंक्लूड करा दी तो यहाँ पे दे दिया कि मेरा प्रोग्राम लाइन 4 लाइनों का है, 8 कॉलम है, तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया. और ये क्या है, सोर्स कोड है. तो ये तो एक, जब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है या आप लोग पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा. अब ये क्या हुआ, ये दिस इज द कंपाइलर, दैट इज द लैंग्वेज प्रोसेसर. कि भाई कंपाइलर लेके आओ तभी तो मशीन कोड में हम चेंज करेंगे. कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, आपकी लैंग्वेजेस को चेंज करता है मशीन कोड में. अब आप कंपाइलर के थ्रू, अब इसमें भी हम आगे भी पढ़ेंगे. कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड. सोर्स कोड मैंने बताया जहां पे हम प्रोग्राम रिटर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो सोर्स कोड होता है. अब उसको मैंने क्या चेंज किया, मैंने यहाँ किया मशीन कोड में. दिस लैंग्वेज प्रोसेसर इज फॉर हाई लेवल लैंग्वेज. ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है. दिस स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट्स इनटू मशीन कोड. सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि कंपाइलर जो ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, सोर्स कोड जो कि सी में लिखा हुआ है वो मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है. उसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं कंपाइलर को, जो कि दिस लैंग्वेज प्रोसेसर फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए होता है. आप समझे कि आप लो लेवल लैंग्वेज को ऐसा कर दें तो ऐसा नहीं होता है. ये क्या होता है, केवल हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए होता है, जो पूरा एंटायर प्रोग्राम को स्कैन कर लेता है पहले और फिर उसके बाद मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है. वो क्या करेगा, सबसे पहले पूरा का पूरा आपका ये क्या करेगा, कंपाइलर क्या करता है, जब हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे तब हम देखेंगे कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम आपका क्या करेगा, पूरा स्कैन कर देगा. फिर उसके बाद कभी क्या होता है कि एरर आता है तो वो थ्रो करता है. तो उसमें क्या करा, आपने पूरा कंपाइलर सोर्स कोड को स्कैन कर लिया, कुछ एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो उसका क्या हो गया, 0101010101010101 में मशीन कोड में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके दे दिया. अब यहीं पे एक टर्म आती है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की. तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज व्हाट,
When the source code is converted into machine code by the compiler, assembler, then the generated code is called as the machine code and it is known by the name of the object program. जब हम source code को machine code में convert करते हैं with the help of the compiler के, assembler के, then the generated code जो होता है वो क्या होता है? मशीन कोड होता है and it is known by the name of the object program. तो सोर्स कोड मैंने आपको बताया क्या होता है, एक टर्म होती है सोर्स कोड भी पूछा जाता है क्या होता है, तो जब हम प्रोग्राम रिटर्न करते हैं दैट इज द सोर्स कोड से रेफर करते हैं हम उसको कि भाई सोर्स कोड दिखाओ अपना या सोर्स कोड बताओ क्या है सोर्स कोड आपका, तो वो हो गया सोर्स कोड. अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज द कोड which is to be converted in the machine code that is called as the object program. After that machine code, अब मैंने यहाँ पे बताया machine code equals to object program. अब कई बार क्या होता है लोग machine code भी बोल देते हैं और कई बार क्या होता है object program भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है machine dependent code होता है, ये machine dependent क्योंकि अब वो केवल machine dependent है, 010101 के फॉर्म में दे दिया है, तो ये वाला कोड क्या हो गया, दैट इज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. अब नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर दैट इज अनदर लैंग्वेज प्रोसेसर और द अनदर ट्रांसलेटर. यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरप्रेटर होता है अनदर टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है. ट्रांसलेटर मैंने बोला यूज फॉर ट्रांसलेटिंग हायर लेवल लैंग्वेजेस इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाइलर. ये थोड़ा डिफरेंट है कंपाइलर से. क्यों है, क्योंकि इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. कंपाइलर क्या करता था, पूरा एंटायर स्कैन कर देता था. फिर अब इंटरप्रेटर क्या करता है कि इट एरर अराइजेस एट एनी लाइन इट विल गिव एन एरर. आपका अगर कहीं भी एरर जरा सी भी लाइन पे आ गया तो क्या होगा, एरर अराइज हो जाएगा. अब जब एरर अराइज हो जाएगा तो वो क्या होगा, एरर अराइज हो जाएगा तो कोड को वहीं रोक देगा, स्टॉप हो जाएगा कोड और एरर थ्रो कर देगा. तो इंटरप्रेटर से फायदा हो गया. अब कंपाइलर क्या करता है कि पहले भैया पूरा का पूरा स्कैन कर लेगा, उसके बाद फिर हमें बता देगा कि लाइन 4 पे यहाँ पे एरर है. ये आपका प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ने देगा. अगर आपकी पहली या दूसरी लाइन पे ही एरर आएगा तो इंटरप्रेटर बढ़ने ही नहीं देगा, जैसे कि पाइथन में होता है, पीएचपी में होता है. तो क्या करता है कि वो प्रोग्राम को बढ़ने ही नहीं देता है. और हम जब सी में यूज करते हैं तो वो बता देगा कि लाइन नंबर 4 में एरर है और पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. फिर हम ढूंढते फिरेंगे कि भाई लाइन 4 कॉलम 4 5 है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे देखिए. और इंटरप्रेटर में आपका कोड आगे बढ़ेगा ही नहीं जहां पे एरर आ जाएगा. अब बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है. तो इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड. अगर हम कंपाइलर की बात करें तो सोर्स कोड को पूरा ट्रांसलेट करता है, एंटायर स्कैन कर देता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ इनटू मशीन कोड. और ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है. और इस बीच अगर बीच में एरर आ जाती है तो कंपाइलर तो क्या करता है, पहले पूरा ट्रांसलेट कर देता है, फिर उसके बाद एरर थ्रो करेगा. इंटरप्रेटर में आपका प्रोग्राम ही आगे नहीं बढ़ेगा कि भाई आपका प्रोग्राम आगे जाएगा ही, रन ही नहीं होगा आगे. एरर पहले की लाइन की आगे मत बढ़िए और आपकी पहली लाइन में ही एरर है. और वहां कंपाइलर क्या करता है, जब हम सी का प्रोग्राम चलाते हैं तो वो एरर बाद में थ्रो करता है. पूरा प्रोग्राम स्कैन हो जाता है, उसके बाद एरर थ्रो करता है कि भाई प्रोग्राम पूरा चल गया, पूरा प्रोग्राम रन हो गया, बस आउटपुट शो नहीं होता है, तो वो थ्रो करता है एरर. डिबगिंग बहुत स्लो होती है क्योंकि वो एंटायर प्रोग्राम को स्कैन करता है कंपाइलर. और इंटरप्रेटर बहुत फास्ट होता है, उसका जो डिबगिंग होता है वो बहुत जल्दी फास्ट होता है क्योंकि वो पहले ही लेवल पे दे देता है कि आपका पहले लाइन पे एरर आ रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. दूसरे पे आ रहा है, दूसरे पहली लाइन पास हो जाएगी, चेंज हो गया मशीन कोड में, दूसरे पे आ जाएगी, एरर थ्रो कर देगा कि भाई अब हम नहीं बढ़ेंगे कि दूसरी लाइन पे एरर है. एग्जीक्यूशन टाइम
कंपाइलर का बहुत ही ज़्यादा कम होता है, सो एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर होता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट कंपाइलर की ज़्यादा होती है क्योंकि वो एंटायर प्रोग्राम को स्कैन करता है, फिर एरर थ्रो करता है, फिर मशीन कोड में चेंज कर देता है, एरर थ्रो करके फिर करेक्ट करके फिर दोबारा से वही प्रोसेस चालू होती है। फिर इंटरप्रेटर क्या होता है, पहले ही रोक देता है कि एरर आ रही है, अब आप उसको सही करें। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस इंटरप्रेटर में, और कंपाइलर में मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर। एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक। तो जो एरर्स होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं, एंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड। एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि पूरा का पूरा एंटायर स्कैन कर देता है, फिर लास्ट में जाके आपको एरर थ्रो करता है। और इसमें क्या करता है इंटरप्रेटर, एरर आर डिस्प्लेड एट एवरी इंस्ट्रक्शन आर इंटरप्रेटेड। तो हर एक लाइन को चेक करेगा, अगर कहीं भी आपका एरर आता है तो थ्रो कर देता है और प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता है। तो इतना सही डिफरेंस है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक साथ चेंज कर देता है मशीन कोड में, और अगर बीच में फिर उसके बाद अगर एरर आता है तो वो थ्रो करता है पूरा प्रोग्राम स्कैन होने के बाद। फिर हम दोबारा से वही प्रोसेस होती है। इससे क्या होता है, डिबगिंग स्लो हो जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगता है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा लगती है, और जैसा कि बताया कि एरर आर डिस्प्लेड, जब पूरा प्रोग्राम चेक हो जाता है तो इस सबसे क्या होता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एग्जीक्यूशन टाइम कम लगता है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस, और डिबगिंग बहुत स्लो होती है। फिर इंटरप्रेटर में क्या हो गया, आपने प्रोग्राम चालू किया, एक लाइन करेक्ट है, मशीन कोड में चेंज कर दिया, एरर नहीं आया। फिर उसके बाद फिर उसका सेकंड लाइन पे आया, एरर आ गया, उसे थ्रो कर दिया, प्रोग्रामर में चेंज कर दिया, वहीं से रन हो गया, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ गया। तो क्या हो गया उसका, उसमें क्या हो गया, मेमोरी रिक्वायरमेंट लेस हुई, डिबगिंग बहुत फास्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा हो गया लेकिन, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। एरर डिस्प्लेड एट एवरी इंस्ट्रक्शंस आर इंटरप्रेटेड, जैसा कि मैंने बोला कि हर एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, फिर एरर डिस्प्ले कर देगा, और अगर एरर नहीं हुआ तो चल देगा। लेकिन उससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और कंपाइलर में क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो लगता है क्योंकि वो एंटायर कोड को स्कैन कर देता है। सो थैंक यू, प्लीज स्टे सेफ, don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon. Thank you.